Hi students, how are you? Today we will start. We are starting our first chapter, which name is Chapter One: Computer Memory and Storage Devices. Now we will move further, and we will study in this chapter what is computer memory, how many types of memory, and how does it works. Number first, computer works by input, process, and output cycle. That is called IPO cycle. Okay. We feed the data through the input devices, example keyboard, mouse, these are called input devices, and we get result through the output devices, example monitor, printer, etc. This thing you know. As we use our brain to memorize the things, same as computer also contain memory. जैसे हम अपने माइंड में सब चीज याद रखते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में भी एक मेमोरी होती है जिससे वो सारी चीजें याद रखता है. ओके, दैट डिवाइसेस आर कॉल्ड मेमोरी यूनिट. Understand memory unit? Now what is memory unit? The device which used to contain the memory, जिससे कंप्यूटर में सारी मेमोरी रखता है, जिसमें जो डिवाइस कंप्यूटर मेमोरी के लिए यूज करता है, that device is called computer. That is device is called memory unit. Memory unit are of two types. Number one, memory are of two types: primary memory and secondary memory. प्राइमरी मेमोरी इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड सेकेंडरी मेमोरी यूज्ड फॉर स्टोर द आउटपुट. हम जो ही वर्क करते हैं कंप्यूटर पर, वो सारा किसमें होता है? प्राइमरी मेमोरी में होता है. और जब हम उसको सेव कर लेते हैं तो वो डाटा जो है वो प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी ट्रांसफर हो जाता है. नाउ व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी. ये मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, बिकॉज दिस मेमोरी ऑलवेज लाई इनसाइड द कंप्यूटर. ये हमेशा कंप्यूटर सीपीयू के अंदर होती है. दिस मेमोरी इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द सीपीयू. This memory give the instructions to CPU how the work has to be done, how the task has to be complete. There are two types of primary memory. Primary memory are also of two types. One is ROM, that is read only memory, and second is RAM, random access memory. Okay, now we will study what is RAM and what is ROM. First is ROM, read only memory is the full form of ROM. It is the picture of ROM. This type of IC is there, that is ROM. इसका मीन होता है read only memory. It is ROM is located on the motherboard. ये motherboard पर एक चिप होता है, इसमें जो motherboard पर लगी हुई होती है. It contains date, time and other information which is essential to operate a computer. कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए डेट, टाइम और जो भी essential information चाहिए होती है वो सब इस ROM के अंदर ही सेव होती है. ओके, जब भी हमारा कंप्यूटर बंद रहता है तो हमारी डेट और टाइम इसमें ही सेव हो जाती है. इसी में डेट और टाइम हमारे सेव होता है. डाटा ऑफ रोम इज अ परमानेंट एंड इट कैन नॉट चेंज बाय अस. इसका डाटा जो कंपनी जो फीड करके देती है बस वही रहता है, इस डाटा को हम चेंज नहीं कर सकते. सो रोम इज कॉल्ड परमानेंट मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. नॉन वॉलेटाइल मीन्स जो इरेज ना हो पाए. नॉन वॉलेटाइल मीन्स इरेज होना, और नॉन वॉलेटाइल मीन्स जो इरेज ना हो पाए. इस मेमोरी डाटा इरेज नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. Which memory data does not get lost when the computer get turned off. जो कंप्यूटर बंद होने पर भी इसका डाटा सेव रहता है, that memory is called non volatile memory. Next is RAM, random access memory. It is a picture of RAM. RAM is the main memory of the system. ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है. Without this computer will not start. इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है. It is also attached to the motherboard. ये भी मदरबोर्ड पर ही अटैच होती है. The work we are doing on the computer get loaded into the RAM. हम जो भी वर्क करते हैं वो RAM में सेव होता है. When we save this work, then the work get saved to the hard disk. और जब हम इस वर्क को सेव कंट्रोल S प्रेस करके सेव करते हैं तब ये हमारा वर्क RAM से हार्ड डिस्क में ट्रांसफर हो जाता है. RAM हमारा प्राइमरी मेमोरी और हार्ड डिस्क हमारा secondary memory. This thing remember in mind everyone. Data of RAM get changed every time when we start new work or file or software. जब भी हम कोई नया सॉफ्टवेयर या नई फाइल ओपन करते हैं तो रैम का डाटा चेंज होता है.
सो इट इज कॉल्ड टेम्पररी मेमोरी। इसका डाटा फिक्स नहीं, परमानेंट नहीं होता है, ये डाटा चेंज होता रहता है, इसलिए इस मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं और वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी मीन्स क्योंकि इसका डाटा लाइट जाने पर इरेज हो जाता है। विच मेमोरी डाटा डज गेट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर गेट टर्न ऑफ इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। जिस कंप्यूटर का डाटा, जिस मेमोरी डाटा लाइट जाने पर इरेज हो जाता है, उस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अंडरस्टैंड? हमारा रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी? वी यूज दिस मेमोरी टू डाटा परमानेंटली। इसका यूज हम अपने कंप्यूटर में डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी मीन्स जो हम अलग से अटैच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी। सम एग्जांपल ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड यूएसबी ड्राइव। ओके, नाउ मेजरिंग यूनिट ऑफ डाटा। डाटा को मेजर कैसे करते हैं? जिस तरह से हम कोई वेट करते हैं, वेट को किलोग्राम में, हाइट को किलोमीटर में मेजर करते हैं, उसी तरह डाटा को भी हम बिट्स में और बाइट में मेजर करते हैं। जो हम एक लेटर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा ए, तो हो गया 1 बिट। इस तरह से मैंने जब 8 लेटर लिख दूंगा 8 बिट, तो हो गया 8 बिट। 8 बिट होता है 1 बाइट के इक्वल, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। सेम एज 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 केबी, किलोबाइट। 1024 केबी इक्वल्स टू 1 एमबी, मेगाबाइट। ऐप देखते हो ना, 2 MB का है, 92 MB का है, या 44 MB का है, वो MB यही है, मेगाबाइट। 1024 MB इक्वल्स टू 1 GB, GB मीन्स गीगाबाइट, और 1024 GB इक्वल्स टू 1 TB, TB मीन्स टेराबाइट। ओके, डाटा स्टोरेज डिवाइस के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या फायदे होते हैं डाटा स्टोरेज डिवाइस के? जैसे हार्ड डिस्क है, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, इनके क्या फायदे हैं? नंबर 1, लार्ज स्टोरेज स्पेस। वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, मीन्स अपना बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड इज इजी ट्रांसफर ऑफ डाटा। डाटा सेव्ड इन दिस डिवाइस कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर। इसमें हम डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपने पेन ड्राइव देखा है ना, आप अपने कंप्यूटर से गाना दूसरे कंप्यूटर ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम एज सॉन्ग के अलावा फाइल्स भी हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्ड इज इजी टू चेंज डाटा। हम अपने डाटा को एडिट भी इजीली कर सकते हैं। जैसे हमने MS वर्ड की फाइल बनाई, उसको कुछ करेक्शन करना है तो इजीली इसको ओपन करके करेक्शन कर सकते हैं। ओके, ये इट इज द एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। फर्स्ट इज, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। सबसे इंपोर्टेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है हार्ड डिस्क। इट इज फिक्स्ड इन सीपीयू बॉक्स। इस सीपीयू के अंदर लगा हुआ होता है। ऑल द डाटा एंड सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर गेट सेव्ड इन हार्ड डिस्क। हम जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहे हैं, उसका सारा डाटा हार्ड डिस्क में ही सेव होता है। अंडरस्टैंड? हार्ड डिस्क हैज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम 250 GB टू 1 TB। अब जो मार्केट में हार्ड डिस्क आ रही है, उनकी कैपेसिटी 250 GB से लेके 1 TB, 1 टेराबाइट तक हो सकती है, होती है। We can also attach hard disk externally. Such devices are called external hard drive. हम अलग से भी अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हैं। इसको हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स बोलते हैं। ओके, फैक्ट बॉक्स कंप्यूटर हार्ड डिस्क के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स हम जानते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क क्रिएटेड इन 1979 वाज 5 MB। सबसे पहले हार्ड डिस्क जो 1979 में बनी थी, उसके साइज बस 5 MB का था। एंड इट कवर्ड स्पेस इक्वल टू द रूम। और ये हार्ड डिस्क इतनी बड़ी थी कि एक रूम के बराबर स्पेस कवर करती थी, और ये बहुत साउंड और हीट भी जनरेट करती थी। लेकिन अब जो हार्ड डिस्क हैं वो ऐसी हो गई है, छोटी सी हार्ड डिस्क हैं, ये 250 GB से 1 TB तक हो सकती है। इसका ये कवर्ड है और ये अनकवर्ड है। ये डिस्क जो है, ये डिस्क हार्ड डिस्क होती है, मेटल की बनी हुई होती है। इसमें हमारा डाटा स्टोर होता है। अंडरस्टैंड एवरीवन? नाउ मूव फर्दर, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, CD। CD तो आप सब जानते हैं, आप सबने देखा है, ये CD है, ये आपका CD का पिक्चर है। CD इज ए कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस। CD बहुत ही कॉमनली यूज होता है, इजीली अवेलेबल होते हैं, हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं।
इट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डाटा, इसमें हम केवल 700 MB डाटा ही स्टोर कर सकते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स की होती है। पहला है CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सेकंड इज CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। थर्ड इज CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अभी तीनों चीजें क्या होती हैं, तीनों पार्ट्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है CD रोम, compact disk read only memory. This CD is preloaded, preloaded means पहले से इसमें डाटा फीड होता है। We can only read this data once the data is saved in the CD cannot be changed further. हम केवल इस डाटा को रीड कर सकते हैं या इस डाटा को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप जो मार्केट से म्यूजिक की सीडी लाते हैं, कोई सॉन्ग की सीडी लेकर आए, ओके, इसमें आप केवल सॉन्ग उसको प्ले कर सकते हैं। आप चाहे वो सॉन्ग उसमें हट जाए सीडी में से तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो कौन सा सीडी हो गया, CD रोम। सेकंड इज CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, मींस इट इज द एम्प्टी सीडी, जो ब्लैंक सीडी अवेलेबल होती है मार्केट में उसको बोलते हैं CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल मींस इसमें हम अपना डाटा खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं। वी कैन सेव और रिकॉर्ड अवर डाटा, ऑडियो और वीडियो, इसमें हम अपना डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना डाटा सेव कर सकते हैं। कोई ऑडियो फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, डेट वी कैन रिकॉर्ड इन द CDR। वंस द डाटा इज रिकॉर्डेड कैन नॉट बी चेंज, पर एक बार डाटा हम रिकॉर्ड कर देते हैं उसको हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज CDRW, दिस CD कैन बी यूज एज पेन ड्राइव, जैसे आप पेन ड्राइव यूज करते हैं उसी तरह CDRW यूज कर सकते हैं। डाटा कैन बी रिटन अगेन एंड अगेन आफ्टर रिसीविंग द प्रीलोडेड डाटा, इसमें हम अपने पहले से लिखे हुए डाटा को इरेज करके नया डाटा इसमें फीड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन? Okay, now what's the interesting thing about CD? A computer needs a CD player to run these all type of CD. कंप्यूटर चलाने, CD चलाने के लिए एक CD प्लेयर चाहिए होता है। ओके, उसकी फोटो भी दिखाएंगे आगे। नेक्स्ट DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये DVD ऐसा होता है, ये आपने देखा होगा मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, ये DVD है। इट लुक्स ऑल्सो इट्स लुक लाइक अ CD, ये भी CD की तरह दिखाई देता है। बट द क्वालिटी एंड स्टोरेज ऑफ डाटा बेटर देन CD, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है और जो डाटा का स्टोरेज है वो CD से ज्यादा अच्छा होता है। ओके, इट कैन स्टोर अप टू 4.7 GB डाटा, ये इट कैन स्टोर 4.7 GB डाटा। हाँ, इट इज अ पिक्चर ऑफ द CD राइटर और DVD राइटर। इट इज यूज्ड टू प्ले CD और DVD इन द कंप्यूटर। अंडरस्टैंड? नाउ Blu-ray disc. Blu-ray is a type of disc which is in blue color. It also looks like a DVD. The picture is same like this, but the quality and storage of the data is better than DVD. लेकिन ये DVD से ज़्यादा storage डाटा कर सकता है। Okay, it can store up to 25 GB of data. Next is USB drive. USB drive, have you seen? This is the pen drive. Like this, you generally use a pen drive. That is also named as USB drive. It is also known as pen drive or flash drive. It can store huge amount of data ranging from 4 GB to 32 GB. Okay, जो पेन ड्राइव का साइज है वो 4 GB से 32 GB तक का होता है। It is faster, safe and easy to use than CD or DVD. Okay, it is very easy and very easy to use, and its speed is fast than CD or DVD. Simply plug in USB port, we can use USB drive. Simply plug in the computer or laptop, we can use this USB drive. There is no need to other extra drive to run this pen drive. It is also known as thumb drive. इसको thumb drive भी बोलते हैं। Understand? Now what you have learned in this chapter, we are revising one time. First is computer memory is the part of the computer which store the data. कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर पार्ट होता है जो डाटा को स्टोर करता है। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। विदाउट द प्राइमरी कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। प्राइमरी मेमोरी पार्ट इज रैम एंड रोम। रोम contains permanent instructions need to boot the computer. Okay, ROM have the instruction that is required to start the computer. Without the ROM, our computer will not get started. RAM is used by the computer to store the data temporarily. In the RAM, we can use the temporary data storage. This data can be raised
Okay, we use secondary memory to store the data permanently. Some secondary storage devices are hard disk, CD, DVD, USB drive, etc. Understand? Now, what is the? It is the model of the computer memory. This is the model. It is your computer memory. Computer memory of two type: primary memory and secondary memory. Primary memory is called internal memory. Secondary memory is called external memory. Primary memory again of two type: RAM and ROM. Read only memory and random access memory. And secondary memory is also two type. Sorry, I am showing you again. Please wait. It is opening soon. Yes, see. Secondary memory of two type: hard disk, USB, DVD, and CD. Okay, these are the type of secondary memory. CD also contain three types: CD-ROM, compact disk read-only memory; CDR, compact disk recordable; and CDRW, compact disk rewritable. Understand? Now this is your chapter. Chapter 1 has finished. Okay, thank you everyone. Now we will meet in the next chapter. Thank you everyone.